ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی و بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر قادر ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وسلم مبارک علیہ. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے اپنا محل موضوع بنایا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن شرط کے ساتھ. شرط اپنے مشروط کے ساتھ لاگو ہوتی ہے. مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو شرط ہے اور نماز مشروط. اگر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، الٹا آپ کو گناہ ملے گا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت سی جگہ شرطیں لگائی ہیں. ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں صاحب حکومت بنائیں گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کر دکھاؤ. آج ہم مغلوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا. آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا. اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تم میں سے اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. شرطیں بہت سی ہیں قرآن کے اندر، لیکن مشروط کے ساتھ. اگر ہمیں مشروط چاہیے، نماز ہمیں ثواب چاہتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب مجھے ملے تو ہمیں وضو بنا کر نماز پڑھنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بن جائیں اور ہم حکومت ہمارے پاس ہو تو اس کے لیے آپ کو مومن بننا پڑے گا. قرآن کی آیت بھی ہمیں اس بتاتی ہے. اور جو تم میں سے اللہ سے ڈرے گا، جملے دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. نہ ہندو کی قید، نہ سکھ کی قید، نہ عیسائی کی قید، ساری دنیا کو خطاب کیا جا رہا ہے. سب سے کہا جا رہا ہے جو تم میں سے اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، سبیل نکال دے گا، اور اس کی پریشانی کا، اس کی مصیبت کا حل ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے اس کو مہیا کر دے گا. آگے دیکھیے اللہ نے کیا کہا،
वयरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब, और तुम्हें वो ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, तुम्हें ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारी अक्ल वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई होंगी। एक शख्स है, उसी बस्ती में रहता है, उसने अपने उस बस्ती के किसी अमीर आदमी के पास वो गया और उससे कहा मुझे 1000 दीनार उधार दे दीजिए, बतौर कर्ज दे दीजिए, मैं आपको फ़ला फ़ला दिन वापस कर दूंगा। अब उसने कहा अरे भाई 1000 दीनार कोई छोटी रकम नहीं है, कोई मामूली रकम थोड़ी है, तुम्हें आज अगर हमने दे दी और तुमने अगर इनकार कर दिया तो कोई गवाह लेकर आओ, यानी हमारे लेन देन कोई गवाह तो हो। उसने कहा भाई मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे गवाही कौन दे देगा, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उसने कहा फिर क्या हो सकता है? उसने कहा कि अगर मैं गवाह अल्लाह को बना दूं तो, मेरी गवाही अल्लाह ताला दे तो। उसने कहा अब तुमने गवाह अल्लाह को बना दिया है तो अब रह क्या गया है? उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा जामिन लेकर आओ, ज़मानत देने वाला, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं उससे ले लूँगा। उसने कहा गवाह तो मिल नहीं रहा है, ज़मानत कौन दे देगा मेरी? उसने कहा कि अगर मैं जामिन भी अल्लाह को बना दूं तो। उसने कहा चलो अब तुमने अल्लाह को गवाह बना दिया है, जामिन भी बना दिया है, अब क्या बात है, चलिए। ये अपने घर गया, 1000 दीनार उसने निकाले। बीवी ने कहा मत दीजिए, मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है, वो यहीं रहता है लेकिन उसकी गवाही कोई नहीं दे रहा है। उसने कहा नहीं बीवी, उसने अल्लाह को गवाह बनाया है, अल्लाह को जामिन बनाया है, अगर वो हमारी रकम नहीं लौटाएगा तो अल्लाह वापस करेगा मेरी रकम को। उसको दे दिए। उसने 1000 दीनार का सामान खरीदा और दूसरी बस्ती में बेचने के लिए गया। होता है आप लोग जो काम करते हैं यहाँ पर अंगोछे वगैरह बनाते हैं, बाहर जाकर बेचते, कोई कानपुर बेचता है, कोई दिल्ली वगैरह बेचता है, महंगा बिकता है, इसमें प्रॉफिट होती है। उसने भी सामान खरीदा 1000 दीनार का और फला बस्ती में बेचने के लिए चला गया। वहाँ सामान उसका महंगा बिका, कॉस्टली सामान बिका। उसने उन रुपयों में से 1000 दीनार अलग निकाल कर रख लिए कि ये मुझे मेरे भाई को देना है। अब कश्ती पकड़ने के लिए आया, समंदर के पास खड़ा है। किसी ने पूछा तुम क्यों खड़े हो? कभी कश्ती आने वाली है, मुझे सवार होकर फला जगह जाना है। उसने कहा अरे भाई कश्ती तो जा चुकी है। कहा इतनी जल्दी? कहा उसको पहले सवारी मिल गई, आज वो पहले ही निकल गई, 2 दिन में पहुंचेगी, फिर 2 दिन वापस आएगी, फिर 2 दिन तुम्हें यहाँ से जाने में लगेंगे, 1 हफ्ता आपका पूरा गया। इसने अपने सर पर हाथ मारा और कहा अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा? मैंने बड़ी लंबी लंबी बातें की थी, मेरा भाई जिस दिन कश्ती पहुंचेगी मेरा इंतज़ार करेगा, जब मुझे नहीं पाएगा मायूस हो जाएगा। इलाहुल आलमीन मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तू मेरे भाई की तक इस रकम को पहुंचाने का इंतज़ाम कर दे, उम्मीद करता हूं कि तुम तक पहुंच जाएगी। पैक कर दिया लकड़ी को, समंदर के पास आया, लकड़ी को छोड़ने से पहले नजर आसमान पर डाली और जुमले उसने अदा की, वो जुमले सुनिए। बुखारी के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा इन्नका तालम अन्नी कुन्तु तसल्लफ्तु अल्फ दीनार फसालनी शहीदन फ़कुल्तु कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़रज़िया बिक फसालनी कफ़ीलन फ़कुल्तु कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला फ़रज़िया बिक। जुमले देखिए उसके। इलाहुल आलमीन तू अच्छी तरीके से जानता है, अल्लाहुम्मा इन्नका तालम तू बेहतर जानता है, अन्नी कुन्तु तसल्लफ्तु अल्फ दीनार कि मेरे भाई के मेरे ऊपर 1000 दीनार चढ़े हुए हैं, 1000 दीनार का मैं मक़रूज़ हूँ। फसालनी शहीदन जब उसने मुझसे गवाह मांगा था, जब उसने मुझसे गवाही देने वाला मांगा था, फ़कुल्तु कफ़ा बिल्लाहि शहीदा तो मैंने तेरी गवाही दे दी थी, फ़रज़िया बिक और वो तेरी गवाही पर राज़ी हो गया था। फसालनी कफ़ीलन और जब उसने मुझसे ज़मानती मांगा, ज़मानत देने वाला मांगा, फ़कुल्तु कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला तो मैंने तुझे ज़ामिन बना दिया था, फ़रज़िया बिक और मेरा भाई तेरी ज़मानत पर राज़ी हो गया था। इलाहुल आलमीन मुझे नहीं मालूम कि लकड़ी मेरे भाई तक कैसे पहुँचेगी, गवाह तू है, ज़ामिन तू है, इस लकड़ी को मेरे भाई तक पहुँचा दे। और ये जुमले कहकर उसने
लकड़ी को समंदर में डाल दिया और देखने लगा लकड़ी कहाँ जा रही है। जानता है कश्ती यहाँ जाती है, उसकी बस्ती इधर साइड है, लेकिन लकड़ी मुखालिफ सिमत जा रही है, दूसरी जगह जा रही है, लेकिन मायूस नहीं है। तवक्कुल उसका अल्लाह की ज़ात पर पूरा है, तकवा भी उसके अंदर है, सब कुछ कर लिया। अब ये आदमी जिसने कर्ज दिया था उस दिन इसका इंतजार करने लगा वहाँ खड़े होकर। कश्ती आई, रुकी, अब देख रहा आंखें फाड़ फाड़ कर मेरा भाई उतरेगा और मुझे 1000 दिनार देगा। सारे लोग उतर गए, लेकिन ये नहीं उतरा। चेहरे पर शिकन आ गई, नजरें आसमान पर डाली। अल्लाह मेरे पास से क्या गया, गवाह तू है, जामिन तू है, मैंने तेरे भरोसे पर उसको 1000 दिनार उधार दिए थे। वहीं बैठ गया कि इतने में एक लकड़ी तैरती हुई चली आई। उस ज़माने में जो लकड़ी पहुंच गई थी मंजिल तक, अगर वो लकड़ी आज मालूम लोगों को पड़ जाए कौन सी लकड़ी थी वो, तो वो लकड़ी बड़ी मुबारक हो जाएगी। आज उस लकड़ी की पूजा होने लगेगी। कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं। उठाया इसने, सोचने लगा घर खाने जाने से बेहतर है इस लकड़ी को अपने साथ ले जाऊं, फाड़ूंगा, धूप में सुखा लूंगा, शाम को जलने के काम आएगी। लेकर चला गया, घर पहुंचा, दरवाजे को दस्तक दी, दरवाज़ा खोला बीवी ने, कहा अस्सलाम वालेकुम। इसने कहा वालेकुम अस्सलाम। बीवी ने पूछा क्या हुआ, कहा मेरी बीवी नहीं आया, वो मैंने आपसे मना किया था मत दीजिए। लेने गई थी 1000 दिनार और लेकर आ गई लकड़ी। अच्छा, जुमले जो बीवियों के जुमले बड़े ख़तरनाक होते हैं, तंज बहुत ख़तरनाक होता है। ये ज़ाती मामला नहीं है मेरा, एक तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, घर घर की कहानी है ये। इंसान बाहर 50 लोगों की सुन लेगा बातें, बर्दाश्त कर लेगा गालियाँ, लेकिन बीवी एक तंज मगर उसको मार दे तो ऐसा लगता है कि ऐसी किसी ने छुरियाँ चला दी हों दिलों के ऊपर। इसने कहा बीवी जले पर नमक मत छिड़को, कुल्हाड़ी लेकर आओ। कुल्हाड़ी लेकर आई, का क्या करोगे, इसको फाड़ेंगे, धूप में सुखा लेंगे, शाम को जलने के काम आएगी। जैसे ही कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पर मारता है, लकड़ी फटती है, उसमें दीनार निकले। इसने जब गिनना शुरू किया पूरे 1000 दीनार। एक पर्ची भी थी, उसमें लिखा हुआ था मेरे भाई मैं वक्त पर पहुंच गया था, लेकिन कश्ती पहले ही जा चुकी थी, मैं क्या करता, मैं तुम्हारे पास कैसे आता। मैं इन दीनारों को इस लकड़ी के अंदर भर रहा हूँ और समंदर के हवाले मैंने कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम तक पहुँच जाएगी। उसने जब पढ़ लिया, अब तो शौहर को शेर बनने का मौका मिल गया। देख अल्लाह खुद नहीं आता है, रास्ते निकाल देता है, रास्ते हमवार कर देता है। और उसने उस सामान को रख लिया। अब इसने फिर मेहनत की और पैसे कमाए और 1000 दिनार अलग रख लिए। अब फिर आया ये कश्ती पे बैठकर और कहा लो भाई ये तुम्हारी रकम, तुमने मुझे जो कर्ज दिया था, मैं नहीं आ सका था, कश्ती निकल गई थी, मजबूरी थी मेरे साथ, अब मैं लेकर आया हूँ। उसने कहा जो तुमने लकड़ी में 1000 दिनार भर कर भेजे थे वो मुझ तक पहुँच चुके हैं। आज के ज़माने के लोग अगर होते तो क्या करते, उसे क्या मालूम लकड़ी मुझे मिली ही नहीं मिली, ला ये भी ला, ये भी ला। हमारी नियतों में खोट पैदा हो गई है आज। आपको मालूम है अब्दुल्ला मुबारक का वाक़या, मुबारक सुना होगा आपने शायद। मुबारक एक बाग में काम किया करते थे, बाग के रख लिया था बाग के मालिक ने, उनको मुलाजिम थे उनके बाग के। मेहमान आए और कहा मालिक ने मुबारक मेरे मेहमान आए हुए हैं, ख़ास मेहमान हैं, ज़रा बाग के मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ, अच्छे अच्छे आम तोड़ कर लाओ। मुबारक को क्या मालूम खट्टा कौन सा और मीठा कौन सा, जो समझ में आया ये इस पेड़ का तोड़ा, उस पेड़ का तोड़ा आम और टोकरी भर कर रख दिया। अब जो मालिक ने आम खाए उस मुबारक के लाए हुए, कोई कच्चा, कोई पका, कोई खट्टा, कोई मीठा, डांटा मालिक ने और कहा मुबारक तुम्हें 4 साल हो चुके हैं बाग में काम करते हुए, तुम्हें तजुर्बा नहीं हुआ है खट्टा कौन सा और मीठा कौन सा। मुबारक का जवाब सुनो। मुबारक जवाब देते हैं, आए मेरे आका, आए मेरे मालिक, आपने मुझे बाग की देखभाल करने के लिए रखा हुआ है, बाग का फल खाने की आपने मुझे परमिशन नहीं दी थी। कसम है उस ज़ात की जिस कब्ज़े मेरी जान है, 4 साल में मैंने आज तक आपके बाग का एक भी आम तोड़कर नहीं खाया। जो गिर जाया करता था, जो हवा से गिर जाया करता था, मैं उसको आपके घर पहुंचा दिया करता था। मैंने आज तक आपके बाग का एक भी आम नहीं खाया। मालिक की आंखों में आंसू आ गए, अपने घर गया, बीवी से कहता है हमारी बेटी जवान हो चुकी है, कहाँ उसकी शादी कर देते हैं। बीवी ने पूछा लड़का देखा है आपने, उसने कहा हाँ। कौन, अपने बाग का मुलाजिम है, उसको नहीं करेंगे।
का बीवी बड़ा ईमानदार है, बड़ा अमानतदार है। मैंने देखा है 4 साल में उसने मेरे बाग की इतनी देखभाल की है, इतनी देख रेख की है कि मेरे बाग का एक भी आम तोड़ कर नहीं खाया। जो गिर जाया करता था वो अपने घर पहुंचा दिया करता था। जो मेरे बाग की इतनी देख रेख करता हो, इतनी हिफाजत करता हो, वो मेरी बेटी को कितनी आराम से रखेगा, मेरी बेटी की कितनी हिफाजत करेगा। मालिक ने तैयार कर लिया बीवी को, बेटी की रजामंदी ले ली, मुबारक भी तैयार हो गए और इन दोनों की शादी करा दी गई। अब आप जानते हो इस मुबारक के नुत्फे से और इस बेटी की कोख से, इन दोनों की मुजामियत और सोहबत से जो बच्चा पैदा होता है वो तारीख में, दुनिया की तारीख में अब्दुल्लाह का नाम पाता है और दुनिया उसको अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से याद करती है। और बड़े बड़े मुहद्दिसों के अंदर इस अब्दुल्लाह का नाम भी आता है। जब हमारे रिज़्क़ में हलाल चीज़ शामिल थी, हम हराम से बचा करते थे, तो इब्न तैमिया जैसे लोग पैदा हुआ करते थे, इब्न क़य्यिम पैदा हुआ करते थे, सनाउल्लाह मसरी पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब से हमने हलाल और हराम की तमीज़ को छोड़ दिया है, जब से हम मक्कारी पर उतर आए हैं, बेईमानी को मुंह लगा लिया है, तो आज बाप को और माँ को जूते मारने वाली औलादें पैदा हो रही हैं। इसने कहा नहीं रखो अपने पास जरा, ये दीनार मुझे मिल गए हैं, मैं नहीं लूँगा, जायज़ नहीं है मेरे लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तवक्कुल था, तकवा था। अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता कैसे निकाला। लकड़ी समंदर के रास्ते गई और उस तक पहुँच गई। इसको क्या मालूम था कि लकड़ी मुझ तक पहुँच जाएगी। दोबारा गया, उसने इनकार कर दिया लेने से। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत से इबरत हासिल करो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। उसने रास्ता ऐसा निकाला इसके लिए कि लकड़ी भी इसके पास पहुँच गई और इसकी अमानतदारी बाकी रही। एक वाक़या और सुनिए आप, उसके बाद बात ख़त्म कर दूँ अपनी। बड़ा मायानाज़ वाक़या है। एक शख्स है, मक्के के अंदर घूम रहा है, कभी काम मिल गया तो कर लिया वरना भूखा है। मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, लेकिन खुददार भी है, किसी के सामने मुंह नहीं खोल रहा है। अब किसी को क्या मालूम कि तुम परेशान हो। आप अगर परेशान हैं तो मुझे क्या पता कि आपको क्या परेशानी है, जब तक बताएंगे नहीं। कुछ नहीं कहा उसने। एक दिन मक्के में घूम रहा है, इसको एक मोतियों का हार मिलता है, एक थैली मिलती है, एक पोटरी। इसने खोला तो मोतियों का हार। खुश हो गया, अल्लाह तूने मेरी सुन ली, बड़ा कीमती हार है, इससे मेरे दिन फिर जाएंगे। अपने घर गया और उस हार को उसने अलमारी में रख दिया। अब तो भूख भी ख़त्म हो गई है, कभी कभी खुशी भी इंसान की भूख ख़त्म कर देती है। नमाज़ पढ़ने गया, ज़ुहर की नमाज थी, सलाम पेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्हीं सफ़ों में से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है और अपनी जेब से 500 दिरहम निकाल कर कहता है, मेरी एक रेशम की थैली गिर गई है, मक्के के बाजार में गिर गई है, जो मुझे वापस ला कर देगा मैं उसको एक 500 दिरहम इनाम दूंगा। सोचा अल्लाह तूने एक चीज़ दी भी थी, उसका मालिक आ गया। इसने उसको बुलाया, इधर आओ, चलो मेरे घर। अपने घर ले गया उसको और उससे पूछा थैली किस रंग की थी? इस रंग की थी। किस धागे से बंधी थी? इस धागे से बंधी थी। उसके अंदर क्या था? मोतियों का हार था। सारी उसने पहचान जब करवा ली, मुतमईन हो गया। अब कोई रास्ता नहीं इसके पास कि न दिया उसको थैली, उसको वापस कर दी। उस बुजुर्ग आदमी ने निकाले अपने 500 दिरहम और उसको देने लगा। कह लो, का किस बात के? का तुमने मेरी थैली वापस कर दी है, तो आपकी थी, पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे? कर रख लो, इनाम दे रहा हूं, खुशी में दे रहा हूं। कैसा इनाम, कैसी खुशी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? कर रख लो, तुम परेशान हो, तुम भूखे हो, इससे तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा। उसने कहा नहीं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 500 रुपये मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़, हलाल है या हराम, मैं नहीं लूँगा। उसने बहुत कहा बुजुर्ग ने, लेकिन ये नहीं माना और उसको वापस कर दिए। वो चला आया, फिर इसका वही हाल हो गया, कभी काम मिलता तो कर लेता वरना ऐसे ही घूमता रहता। एक दिन इसको सफ़र पेश आया, सफ़र पर गया, सफ़र 5-6 दिन का था। सत्तू लेकर चढ़ जाता है कश्ती में। जब कश्ती समंदर के बीचों बीच पहुंचती है, समंदर के बीचों बीच पहुंचती है, तूफान आ जाता है, सारे लोग मर जाते हैं डूबकर, सिर्फ यही आदमी बच गया। सब मर गए, एक आदमी, ये इसका नाम था अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल काजी, ये बचा रहा और तख्ते को पकड़े हुए मजबूती के साथ। समंदर की तेज लहरें इसको दाएं लेकर जा रही, कभी बाएं लेकर जा रही हैं, तख्ते को पकड़ा हुआ है। 2 दिन का सफ़र करने के बाद समंदर की लहरों ने इसको जजीरे पर पहुंचा दिया। रेगिस्तानी इलाका, चटियल मैदान, पहुंचा वहां पर। छोटी नमाजें पढ़ी इसने। अब देख रहा है कहीं कोई बस्ती नज़र आ जाए, कोई मस्जिद नज़र आ जाए,
تلاش کیا، ایک اس کو مسجد مل جاتی ہے، پہنچا مسجد میں، مغرب کا ٹائم تھا، کوئی امام نہیں تھا وہاں پر، اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا، اس کی داڑھی آڑھی بڑی تھی، پڑھاؤ نماز تم، اس کی آواز اچھی تھی، لوگوں نے امام اس کو اپنا رکھ لیا، وہیں رہنے لگا۔ ایک دن قرآن لکھ رہا تھا، لوگوں نے کہا تم لکھنا بھی جانتے ہو؟ کہا الحمدللہ، ہمیں لکھنا بھی سکھاؤ، پڑھنا بھی سکھاؤ۔ لکھنا سکھانے لگا، پڑھنا سکھانے لگا۔ لوگوں نے کہا اس سے اب تو بہت دن ہو چکے ہیں ہمارے یہاں رہتے ہوئے، اکیلے کیسے رہو گے یہاں پر؟ ہماری محلے میں ایک لڑکی ہے، یتیم ہو چکی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اگر تم کہو عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اگر تم کہو تو اس سے تمہارا نکاح کرا دیا جائے۔ اس نے بہت منع کیا، لیکن محلے والوں کے اصرار پر یہ مجبور ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گا۔ جب اس کا نکاح ہوا اور لڑکی جب اکیلے کمرے میں آئی اس کے ساتھ، چونکہ پہلی رات تھی، ہر میاں اور بیوی مذاق کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اس نے بھی کی، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کی نظر اس کے گلے پر پڑتی ہے، گلے پر وہی موتیوں کار۔ یہ دیکھنے لگا، بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ بیوی نے کہا بڑے مطلبی ہو تم، تمہارے سامنے بیوی کھڑی ہوئی ہے، ایک خوبصورت بیوی کھڑی ہوئی ہے، اور تم آج کی رات اس ہار دیکھنے میں گزار رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں بیوی، یہی ہار ہو بہو، یہی ہار مجھے مکے میں ملا تھا اور کسی بزرگ کے دعوے پر میں نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ بیوی سمجھ گئی کہ مجھے پوری داستان سناؤ، کیا بات ہے؟ اس نے داستان سنا دی، اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بیوی کہتی الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے میرے شوہر، آپ کو نہیں معلوم کہ میرے باپ جب سے مکے سے آئے تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے الہ العالمین، میں نے اس دنیا میں ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو بڑا امانت دار ہے، بہت ایماندار ہے، الہ العالمین تو اس کو اس بستی تک پہنچا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر سکوں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس کو میں ہار واپس کر رہا ہوں ایک دن یہی ہار مجھے واپس مل جائے گا اور ہار والی بھی مل جائے گی، ہار کو استعمال کرنے والی ایک نیک اور ایک شریف بیوی مجھے مل جائے گی۔ اس کو کیا پتا تھا، لیکن تقویٰ تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہارا خیال بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس کو کیا معلوم تھا ایک دن ہم امام بھی بن جائیں گے اور پڑھانے والے بن جائیں گے اور یہ ہار مجھے مل جائے گا، ہار والی بھی مل جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈرتا تھا اللہ سے، خوف تھا اللہ کا، توکل بھی تھا، تو اللہ نے اس کے لیے راستہ یہ نکالا، سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تقوی سے اس کی جان بھی بچ گئی، سب مر گئے تھے کشتی کے اندر، یہ آدمی اکیلا بچا رہا۔ کیوں؟ تقوی کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے۔ تو تقوی بہت ضروری ہے، توکل بہت ضروری ہے۔ تقوی توکل کے ساتھ ہے، تقوی ہے تو توکل بھی ضروری ہے، توکل ہے تقوی ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک چیز ہے دوسری چیز بیکار، توکل ہے تقوی نہیں، توکل بیکار، تقوی ہے توکل نہیں، تقوی بیکار، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور ساتھ میں تدابیر بھی کریے، یہ نہ ہو توکل میں ایسا نہ کریں گاڑی پر بیٹھے پیٹرول نہیں ہے گاڑی میں تب اللہ پر بھروسہ ہے، یہ نہیں، احتیاط پوری کر لیجئے، آپ اپنے کام پورے کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل کریے، بھروسہ کریے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر توکل پیدا کر دے، تقوی پیدا فرما دے، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو تیری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔